السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ فلسطین میں جاری خون ریزی رکوانے کے لیے پوری دنیا کو آواز اٹھانی چاہیے۔ فلسطین میں جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب۔ بولے معاشرے سے تفریق کو ختم کرنا ہے، تحمل اور برداشت کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ دنیا میں امن کے حوالے سے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دن کی مناسبت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں عیسائی بستے ہیں، ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ جو امن کے داعی تھے، ان کے مشن کے فروغ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جنگ بندی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مسیحی برادری کی خدمات پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد آج تک بہت نمایاں ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہمیں مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد، جن کی یوم پیدائش بھی 25 دسمبر ہے، اس حوالے سے اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر کامیاب آپریشن 13 خارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ عسکری ترجمان کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ خارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر صدر اور وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک سرزمین کو ناپاک دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ خفیہ اطلاع پر کیے گئے آپریشن میں 13 خارجی دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا۔ سراروغا میں پاک فوج نے خارجی دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو نشانہ بنایا۔ مارے گئے خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ عسکری ترجمان کے مطابق علاقے کو خارجی دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے ہر دم تیار اور پرعزم ہیں۔ کامیاب کارروائی پر صدر اور وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا، کہا دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ انسانیت کے دشمنوں کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو دوسری جانب پاکستان اور افغانستان میں 1 سال بعد اعلیٰ سطح پر رابطہ بحال ہو گیا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے کالعدم ٹی ٹی پی کے خفیہ ٹھکانوں کی تفصیلات افغان حکام کے سامنے رکھ دیں۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈرز کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان میں رابطہ۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق کا افغانستان کا دورہ۔ کابل میں افغان وزیر داخلہ اور قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ محمد صادق نے دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ افغان حکومت کے سامنے کالعدم ٹی ٹی پی کے خفیہ ٹھکانوں کی تفصیلات بھی رکھی۔ کہا کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے افغانستان میں ٹھکانوں سے خطرات ہیں۔ پاکستان نے افغان حکام سے ٹی ٹی پی کے مطلوب دہشت گرد کمانڈرز کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا اور زور دیا کہ افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ 26 نومبر کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی خاتون رہنما اور نامعلوم ہینڈلر کی 26 نومبر کی شرپسندی کے حوالے سے ہوشربہ گفتگو منظر عام پر آ گئی ہے۔ گفتگو میں پی ٹی آئی خاتون رہنما اور نامعلوم ہینڈلر اسلام آباد جتھے پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہینڈلر واضح ہدایات دے رہا ہے۔ سازش کا پورا نقشہ رنگوں کی مدد سے سجایا جا رہا ہے۔ اس کو بڑا ریشنل کے ساتھ سمپل دیکھے میں نے لکھ دیا یہ صاف واضح کر کے کہ جو علاقوں کو میں نے لائٹ ہائی لائٹر سے کیا اے والے وہ سب سے پہلے یعنی 22 تاریخ کو موو کریں جو فار فلنگ ایریا سے، پھر آ جاتے ہیں پنک والے جو ہے نا وہ 23 تاریخ کو موو کریں، اور پھر آ جاتا ہے ڈی ڈے یعنی کہ 24 کو موو کریں۔ ڈی آئی خان والی سائڈ سے جو ہے آپ کے سی ایم وہ اپنے علاقے سے ڈی آئی خان سے جو موٹر وے ہے اس کو یوز کرتے ہوئے لے کے آتے ہیں اپنے ایریا سے، وہ لے کے آئیں۔ پشاور کا
ये है ना 410 नौशेरा रसालपुर, ये वाला एक नेचुरल पीछे से थोड़ा सा वो खैबर पास वाले और ये वजीरस्तान ये वाला बनता है मैं इस एरिया में। फिर ये आ जाता है अपर दील लोअर, ये सवात ही मालाकंड में आ जाए, बुनेर इस साइड पे आ जाएगा, बुनेर सवात मालाकंड आगे आते हैं, उसके दरमियान में भी आते हैं, और मर्दान से फिर सवाबी ये बनता है। शांगला को वहाँ से रूट उतरता है बशाम में भी। मैं आप यकीन माने कि 26 या 27 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका मसला हमारा मसला, इस कौम का मसला, मुल्क का मसला, मुल्क की फ्यूचर का, हमारी नई जनरेशन का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी गई असद कैसर का जो मुझे प्लान है ये मेरी समझ से अगेन बाला तरी 4 दफ़ा वहाँ से आपको कामयाबी नहीं मिली तो 5वीं दफ़ा कैसे मिल सकती है? आपकी मर्जी है, मगर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हूँ। ये मैं आपको इंडिकेट कर रहा है असद कैसर की नीयत को कि ये फिर आपको वहीं ले जाके खड़ा करेगा। नामजद वजीर खारजा ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल का अमरीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू, कहा कि बाइडेन इंतजामिया 4 साल के काम आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बनाया, सियासत की कोशिश की, सियासतदानों की पीटीआई को कड़े हाथों लिया। अता तारड़ की भी शदीद तनकीद, कहा जो अपने इदारों और शोदा की बेहुरमती करें वो पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं। नासिर हुसैन शाह भी फट पड़े। तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मनी इंतशार की सियासत पर कड़ी तनकीद का सामना। वफाकी वजीर अता तारड़, लीगी रहनुमा अमीर मकाम और पीपी के नासिर शाह ने आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सानिया 9 मई के मुल्जिमान के मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल में आलमी कवानीन की पासदारी की गई, कहीं कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 9 मई को जो जलाओ घेराव तोड़ फोड़ की आपके रहनुमा सारे सामने हैं। अब राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, जो इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की गई हैं, उसकी किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इससे ज़्यादा राइट टू फेयर ट्रायल और क्या होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना था कि सिविल नाफरमानी से मुल्क का ही नुकसान होगा। पाक फौज ने हर महाज पर मुल्क की हिफाजत की, मरकजी हुकूमत पर चढ़ाई करना दुख की बात है। अगर आप सिविल नाफरमानी और इस पर जाए कि न बिल पे करे न कुछ और पे करे, नुकसान इन पाकिस्तान का होगा, इन आवाम का होगा। तो वही मुश्किल में आप देख रहे हैं कौन साथ देगा। अगर दहशत गर्दी हो, अगर जलजले हो, सैलाबे हो, तो वही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं कि वही जाके मरकज पर चढ़ाई करे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने वाजे किया कि इंतशार की सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये भी उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई की सेकंड लीडरशिप की वजह से बनी है। पीटीआई की सेकंड क़यादत चाह रही थी कि कमेटी बने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरा रजा की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, बोले हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद संगजानी में जलसे की पेशकश की गई। पीटीआई के सोशल मीडिया ने जनाजे उठते नहीं दिखाए। पीटीआई की सेकंड लीडरशिप चाहती है कि मुज़ाकरात हों। अच्छी बात है, पीटीआई का पार्लियामेंट में रवैया तब्दील हुआ है। जो मुज़ाकरात की है ये माने या ना माने, इनकी जो सेकंड लीडरशिप है ये उनकी वजह से कमेटी बनी है। ये जो एडवाइजरी कमेटी थी, पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी, उसका सेशन बिफोर द असेंबली होता है 1 घंटा पहले, और उसमें इनके सारे लोग जो थे वो चाह रहे थे कि बातचीत हो। बैरिस्टर गौहर के पूरे चक्कर थे अडियाला के, और क्योंकि इन्होंने मांगी भी नहीं थी परमिशन और हाई कोर्ट की भी पाबंदी थी, फिर भी इनको संजानी ऑफर किया गया था। किसी ने आज तक अपने हल्के के हिसाब से लोगों जख्मियों की और की जो कि इनका दावा है उसकी नाम भी नहीं दिए। इनके जो सेकंड लीडरशिप है, जो ताकतें पाकिस्तान को गिराना चाहती हैं उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ललकार यौम कायद की मुनासबत से तकरीर से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई ने गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को शनाख्ती कार्ड बनवा कर दिए। उम्मीद है पारा चनार में 2 से 3 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे। और गवर्नर कराची का वजीर आला सिंध का कामरान खान टिसोरी और मुराद अली शाह के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। गवर्नर सिंध ने वजीर आला सिंध को मुखातिब करके कहा कि वजीर आजम से जब बात करें तो कराची के लिए भी फंड्स रिलीज करवाएं। कराची मेरा शहर है। जवाब में वजीर आला सिंध ने कहा कराची हम सब का है, आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर है। मेरा शहर है,
जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद हुकूमत मुकर गई। किसान सख्त सर्दी में मेहनत करके अनाज उगाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का फालिया में किसान कन्वेंशन से खिताब। बोले स्कूल्स को निजी इदारों को देकर मुफ्त तालीम का हक छीन रहे हैं। शुगर माफिया गन्ने के रेट अपनी मर्जी से तय कर रहा है। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है, हुकूमत मजदूरों और किसानों पर टैक्स लगाती है। आइए पाकिस्तान को कायद के उसूलों के मुताबिक पुरअमन खुशहाल कौम बनाने का इज्तिमाई अज़्म करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मसीही कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी पहुंच गए। मसीही रहनुमाओं ने सिपह सालार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिपह सालार ने मजहबी रवादारी पर जोर दिया। हम आहंगी के जज्बे का इजहार, क्रिसमस पर मसीही कम्युनिटी से यकजहती। आर्मी चीफ ने मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। क्रिसमस के मौके पर यकजहती के लिए सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी पहुंच गए। चर्च आमद पर बच्चों की जानिब से आर्मी चीफ को गुलदस्ता पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्रिसमस का केक भी काटा। मसीही बरादरी ने चर्च आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, हमदर्दी, सखावत और खैर सकाली जैसे आफाकी असूलों की अलामत है। इस मौके पर सिपह सालार ने अक़लियतों, खास तौर पर मसीही कम्युनिटी की पाकिस्तान की शानदार खिदमत को सराहा। 25 दिसंबर की मुनासबत से आर्मी चीफ ने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना को भी जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कहा, कायद आज़म के आज़ादी, मसावत और मजहबी रवादारी के नजरियात गैर मुतज़लज़ल थे। उनका कहना था कि कायद के असूल कौम की तामीर के लिए अबदी रहनुमाई भी फराहम करते हैं। पाक फौज भी मसीही बरादरी की खुशियों में पेश है। पेशावर और कोयटा में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब में पाक फौज के कोर कमांडर्स ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। पेशावर में क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी और फैमिलीज के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका से खिताब में कोर कमांडर का कहना था कि मसीही बरादरी के वतन अजीज के दिफा में बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। कौम उनके खुलूस और मोहब्बत को कदर की निगाह से देखती है। उधर कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने क्रिसमस के मौके पर कोयटा की तारीखी चर्च की दुआया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर केक भी काटा गया। कोर कमांडर बलोचिस्तान की जानिब से मसीही बरादरी को तहाइफ भी पेश किए गए। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स की दर्जा बंदी में बाबर आजम की 795 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन बरकरार है। उनके अलावा कोई पाकिस्तानी टॉप 10 लिस्ट में शामिल नहीं है। फ़खर जमान 17वीं पोजीशन पर बरा जमान है। साइम अयूब 57 दर्जे की बड़ी छलांग लगाते हुए 24वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए। वनडे ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं है। खुश्क मेवजात में चलगोज़े आज भी नंबर 1 है, लेकिन आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। क्या बच्चे और क्या बड़े, किसी को भी याद नहीं कि आखिरी बार चलगोज़े कब खाए थे। हमने कोई पता नहीं कब खाए थे। इस टाइम तो बहुत महंगे हुए खाने, हम तो खा नहीं सकते कि चलगोज़ा, इसीलिए मूंगफलियाँ खा लेते हैं और ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। हमने कभी नहीं खाए चलगोज़ा, देखे ही नहीं हमने। हम दूसरे ड्राई फ्रूट खाते हैं, इतने अम्मी अबू दिला के नहीं देते। चलगोज़ा जितना महंगा हो गया ना, तो अब तो कोई भी नहीं खा सकता। हमने तो चलगोज़े देखे भी नहीं है ना खाए हैं। 62 साल उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने चलगोज़े कब खाए थे। एक मुद्दत हो गई चलगोज़े जब खाए हुए, अब तो देखने वास्ते भी नसीब नहीं है मेरे भाई। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।